যশোদা হসপিটালে এখানে চাকরি করি আগরতলাতে অ্যাজ এ ডেপুটি ম্যানেজার। এবং যশোদা হসপিটাল হচ্ছে হায়দ্রাবাদের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট হসপিটাল, 4000 বেডেড হসপিটাল হায়দ্রাবাদের। এবং আমাদের 4টে ইউনিট রয়েছে, সেখানে 4টে হার্ট ইউনিট রয়েছে এবং অলসো 4টে ক্যান্সার ইউনিটও রয়েছে। তো আমাদের এখানে আজকে খুবই গর্বিত যে আমাদের স্যার আছেন ডক্টর বিজয় কুমার বাডা স্যার, ইনি সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এবং ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর। এবং আজকে আমাদের সাথে পেশেন্টও আছেন, যিনি একটি ক্রিটিক্যাল কেস স্যার হ্যান্ডেল করেছেন জাস্ট 3 মান্থ এগো, এবং উনি আজ সুস্থ আছেন, এখানে আছেন। তো বাকি যেগুলি আছে এগুলি স্যার বলবেন। স্যার ইউ উইল কন্টিনিউ স্যার। পড়াশোনার পরে এখন তো আমি খুব ভালোই করতেছি। প্রথম দিকে আমার একটু খিদে বেশি পাইতো আর কি অপারেশনের পরে। এখন এটা দেখি আস্তে 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 আমার বডি রিকভারি করে নিছে, এখন আর কোনো প্রবলেম হয় না। তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি করছি। সমস্যাটা কতদিন ত্রিপুরাতে ছিল আপনার যখন রোগটা? না, আমার ধরেন 2-3 দিন আমি এখানে টিএমসিতে ভর্তি ছিলাম, ওখান থেকেই আমি হায়দ্রাবাদ চলে যাই। যাওয়ার পরে স্যারে আমার অপারেশন করলো, হ্যাঁ, করার পরে এরপরেই আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেলাম আর কি। 2-3 দিন ওখানে ছিলাম হাসপাতালে, তারপরেই ওনারা ছেড়ে দিল, বাস। ওখানে 2 দিন থেকে তারপর বাড়ি চলে এসেছি। এখন আপনার চলাফেরা করতে কোনো রকম? না, কোনো অসুবিধা নেই। আমি এখন বাইসাইকেল চালাই বা হার্ডওয়ার্ক করি, কোনো অসুবিধা হয় না। জেনারেলি অপারেশনের পরে মানুষের একটু অসুবিধা হয়, আমার সেই ধরনের কোনো অসুবিধা নাই, ভালো আছি। কি বলবেন আপনার এই চিকিৎসা? এই চিকিৎসা তো নো ডাউট ভালো, হ্যাঁ। ওনাদের এখানে যাওয়াতেই হয়তো আমি বেঁচে গেছি। আমার এখানে থাকলে আমি এই চিকিৎসাটা পেতাম না, পেলেও খুব রিস্ক ছিল। আর ওখানে ওনারা যেভাবে করেছেন, আমাকে চিকিৎসা করেছেন, ওইটা আমি খুব খুশি। এবং ভবিষ্যতে আশা করি যারাই যাইব যশোদা হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট ভালোই পাইব। আমার নাম দুর্জয় কিশোর ঘোষ, আমার ধলেশ্বর সেন্ট্রাল জেলের সঙ্গে বাড়ি। আমাদের তরফ থেকে হসপিটালে গেস্ট হাউস আছে, হসপিটালে গেস্ট হাউসে আমরা থাকার ব্যবস্থা করে দিই। ওইখানে পেশেন্ট নিজে রান্না করে ত্রিপুরার খাবার ঘরে যেভাবে খায় সেভাবে খেতে পারে। এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন, এখান থেকে গেল পেশেন্ট নামার পর হসপিটাল কোথায়, ওটা নতুন প্লেস, ওটা জানে না, আমরা হসপিটাল থেকে ফ্রি পিক আপও করে দিই এবং ওনারাও পেয়ে যায়। আমিও এই সার্ভিসটা পেয়েছি, আমাকেও ফ্রি পিক আপ করা হয়েছে। এবং বেঙ্গলি কোঅর্ডিনেটরও থাকে, ইয়েতে ভাষার কোনো প্রবলেম হবে কিনা সেজন্য বেঙ্গলি কোঅর্ডিনেটরও থাকে, ওরা হেল্প করে টোটাল আমাদের। और हम ये भी देखते हैं क्योंकि सब लोग वहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए हम जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स का इधर जो विजिट हम रखते हैं, ताकि जितने पेशेंट प्रॉब्लम रहता है सब लोगों को हैदराबाद आके वहाँ पे नहीं हो सकता है या, तो इसलिए हम यहाँ पे आके जैसे स्क्रीनिंग होती है, हम इधर एक 40 पेशेंट देखेंगे, उसको हमें पता चलेगा कि थोड़ा लोगों को इधर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिनको वहाँ का हमारा ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, जो वहाँ का ट्रीटमेंट हम करने से उनको डिफरेंस हो सकता है, उनको हम उधर आने के लिए बोलते हैं। और फॉलोअप भी इजी होता है। अभी हम इनका सर्जरी किए, फॉलोअप में वो ये हैदराबाद नहीं आए, जैसे मैं इधर विजिट आ रहा हूँ तो इधर ही फॉलोअप इनका हो जाता है। तो थोड़ा सा फैसिलिटीज़ ऐसे करने से पेशेंट्स का सुविधा बढ़ता है, लोगों को थोड़ा फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलता है। लोगों को हैदराबाद जाने का पॉसिबिलिटी रहता है बट डर जाते हैं, हैदराबाद में जाएंगे कौन है, कैसा है, हॉस्पिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई हमारा आदमी नहीं है वहाँ पे, तो रहेगा। और जैसे इन्होंने बोले कि हमारे हॉस्पिटल में लैंग्वेज बैरियर एक रहता है, हम उधर साउथ ये इधर नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो ये आए तो मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं हुआ कि इनको तो थोड़ा फिर भी हिंदी थोड़ा आता था, और इनका जो भाषा है मेरे को समझ में आता था, जो टेलीपैथी बोलते हैं उससे हम लोग ज़्यादातर बात करते थे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स है, जो ट्रांसलेटर्स है, वो पहले तो वही इनका रिसीव करके उनको अरेंज करते हैं। तो दिस विजिट विल हेल्प ऐसे पेशेंट्स को जो थोड़ा आइडेंटिफाई करके हम उनको रेफर करते हैं। उनियो एक्चुअली या नमस्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, एट द सेम टाइम बहुत कॉमन है ये एरिया में।
ऐसा जो कंडीशन इनका था। इनको बेसिकली गॉल ब्लैडर में स्टोन्स था। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स यहाँ एरिया में बहुत कॉमन दिखता है। इनको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के साथ में वो स्टोन नीचे स्लिप हो गया था, जो मेन बाइल डक्ट बोलते हैं, जो लिवर से नीचे आके इंटेस्टाइन में जॉइन होता है। वो बाइल डक्ट में स्टोन स्लिप होके वो स्टोन बड़ा हो गया था। उसके वजह से इनको जॉन्डिस आके, लिवर में भी थोड़ा सूजन आके, लिवर का भी प्रॉब्लम होके उसमें इन्फेक्शन हो गया था। और जब जॉन्डिस होके लिवर में जो जॉन्डिस के वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड में बहुत जल्दी फैलता है। वही ब्लड जब पूरे दूसरे ऑर्गन को जाता है, हार्ट, किडनी, लिवर, तो ऐसे कंडीशंस में मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, वो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इनको भी इन्फेक्शन खून में गया था। तो हम इनको बहुत ही यहाँ पे जब देखे थे इनको तो बहुत डेलिकेट सिचुएशन था। तो हैदराबाद आए, हमारे हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में आए थे। तो वहाँ पे हमने पहले इनका जॉन्डिस को थोड़ा, इन्फेक्शन जो ब्लड में था उसको थोड़ा कंट्रोल किया। फिर इनको सर्जरी तो करना था। जनरली इसको बहुत बड़ा सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी करके गॉल ब्लैडर निकालना, उसका जो बाइल डक्ट का स्टोन निकालना है वो करते। वो का सर्जरी ये एज में, इनका जो तब कंडीशन था, उतना इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन जब था उसमें करते तो उससे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता था। तो इसलिए हमने उनको एंडोस्कोपी करके, जो ERCP बोलते हैं, उससे हमने पहले जॉन्डिस को कम किया। फिर उसमें से थोड़ा सा स्टोन क्लियर करके स्टेंट डाला, थोड़ा जॉन्डिस कम करके इन्फेक्शन कम किए, ब्लड में जो इन्फेक्शन था उसको हमने कंट्रोल में लाके फिर इसको हमने मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, उससे हमने इनको गॉल ब्लैडर और जो बाइल डक्ट में स्टोन था वो क्लियर किए। सर्जरी होने के 2 दिन में ही इनको डिफरेंस हमको दिखने में आया। इनका जो इन्फेक्शन कंट्रोल में आया था, इनका जो रिकवरी था बहुत स्मूथ रिकवरी हो गया। अगले दिन उठ के बैठ के थोड़ा कुछ पीने का, खाने का स्टार्ट कर रहे थे और दूसरे दिन उठ के चल फिर सकते थे। हमने एक ट्यूब रखा था, वो ट्यूब हम 2-3 दिन में निकाल दिए। फिर शायद वहाँ पे 5 दिन, हफ्ता थे हॉस्पिटल में, 2-3 दिन थे। फिर बाद में बाहर एक 4-5 दिन रुक के फिर हम एक फॉलोअप करके फिर हम इनको यहाँ पे अगरतला वापस भेज दिए थे। उसके बाद से भी इनका रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है। जो हम बाइल डक्ट में वो स्टेंट रखे थे, फिर हमने उसको इधर ही स्टेंट एंडोस्कोपी से स्टेंट निकाल दिया है। तो अभी बहुत खुश होता है इनको ऐसे देख के। लगता नहीं है जो हम इनको कुछ महीने पहले देखे थे ऐसा नहीं है। इनका रिकवरी भी अच्छा था, बहुत अच्छा सपोर्ट था इनका और फैमिली का। क्योंकि ये ट्रीटमेंट अगर इधर भी कहीं हो सकता था शायद, बट रिस्क ज़्यादा रहता था। बट वो समझ के और हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के वहाँ पे आके ट्रीटमेंट कराए। वी आर ऑल्सो थैंकफुल फॉर हिम फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट। सो ओवरऑल बहुत ऐसे जब कंडीशन रिस्क रहता है, कॉम्प्लिकेशन रहता है, उसमें से पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलता है। सर्जरी हम लोगों ने मिनिमल एक्सेस सर्जरी लेप्रोस्कोपी में ही किया था। हम सिर्फ 2 घंटे में किए, क्योंकि इनका वो टाइम पे इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा था तो एनेस्थीसिया ज़्यादा देर नहीं दे सकते थे। वहीं पे हाई वॉल्यूम सेंटर एक्सपर्टाइज का काम होता है कि इसको कन्वर्शन बोलते हैं। जो लेप्रोस्कोपी में करना चाहते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा तो ओपन करना पड़ता है। एक पेशेंट को लेप्रोस्कोपी से हम अगर ओपन करते हैं तो उनका कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑपरेशन से बाहर आने का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो हम जहाँ तक हो सके वो लेप्रोस्कोपी में ही करते हैं। तो इनका ऑपरेशन हम पूरा पहले ही प्लानिंग किए थे, एनेस्थीसिया देने से पहले ही पूरा प्लानिंग किए थे। तो हम ऑलमोस्ट 1.5-2 आवर्स में इनका पूरा सर्जरी क्लियर किए थे। और सर्जरी के बाद तुरंत एनेस्थीसिया से बाहर आए, वेंटिलेटर में वो रखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। हम इनको उधर ही हमारा क्रिटिकल केयर में मॉनिटरिंग करके तुरंत हम इनको रूम में शिफ्ट किए थे।